I am Dr. Swati Wagmare. I will be playing a role of a narrator. So, body image. Body image are the thoughts and feelings about self which play important role in the teen's life. Body image is influenced since a very early age by the messages teens receive from their parents and siblings while interacting with them, also from their peers and teachers, and these are their life mirrors. Everyone wants to be seen, to be looked at. That's human nature. So teens observe themselves in the mirror to groom themselves and present themselves to the world. But they are concerned only about their external appearance, size or shape. But they are not much aware about their inner strengths unless they get feedback from their life mirrors. Nowadays, social media is another mirror in their lives, where idealistic body portrayal for teens is there and they believe in that. So they develop a negative body image issues which are very common during adolescence. That is, they are unhappy about their size, shape and appearance. In various studies, it is found that up to 78 to 81% of adolescents are having body image issues. And body image issues is responsible for low self-esteem, which is very important for dealing with our day-to-day challenges. And just now we have heard about resilience, building resilience. And this is also responsible for rising mental health issues like depression, anxiety, and eating disorders. To check these issues, pediatricians play a crucial role in guiding teens by giving them anticipatory guidance and guiding their parents in building positive body image. So, here we are, presenting before you a role play, Mirror, Mirror, that is with my team, which are very accomplished pediatricians and great actors. So in our role play, Dr. Deepa will be playing a role of teen, Khushi, who is a very chubby girl, very active, has a lot of friends and circle. Her parents, Dr. Reena, she is her mother, and her father, Dr. Jigen Shaha, they are very understanding parents. Very few times you can get such understanding parents. And then we have Dr. Divyang Patel. He will be playing the role of a doctor. So over to the first scene where Khushi is observing herself in her mirror. So let us peep into her world. Over to you. Music. So there is a real mirror over there and she is observing her. Few minutes, few technical glitches. And body image issues are seen in the form of, many are very much conscious about their skin or hair, acne issues, weight issues, some have teeth problem, height, even short-statured teens also have problem with their height. They want some specific type of facial features. They are not very much accepting their, means they, even though they have normal features, but they themselves feel that their nose is crooked and that is not good for them and it should have been that way. So they don't accept the things that they are having,
and because of that, they have a low self-esteem. And as all of you are aware, self-esteem is very important for building their self-confidence and to face the challenges. They may show self-consciousness, shame, and mental health issues like anxiety and depression are very common. And if these are persistent, even the body image issues, they become severe, it can lead to पर सब लोग तो बोलते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स तो मुझे मोटी बोलते when this body image issues become severe, it is known as body dysmorphic तुम्हारे मम्मी disorder. पापा सुना है कि आईना झूठ नहीं बोल Yes, we are ready now. सुना है कि आईना झूठ नहीं बोलता, हाँ, आपने सही सुना है। पर मेरा आईना तो झूठ बोलता है। पर मैंने क्या झूठ बोला? तुम्हारे सामने देख के लगता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो सही तो है, आप हो ही सुंदर। पर सब लोग तो बोलते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स तो मुझे मोटी बोलकर चिढ़ाते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे टीचर और फ्रेंड्स तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और चाहते भी तो हैं। अरे कहाँ, मेरी फोटो भी तो अच्छी नहीं आती और इंस्टा पर मुझे कितने कम लाइक्स मिलते हैं। मेरी फ्रेंड्स काव्या कितनी स्लिम एंड ट्रिम दिखती है और पता है मेरे क्लास में काव्या को इंस्टा पे सबसे ज्यादा लाइक्स मिलती है और उसके फॉलोअर्स भी इतने ज्यादा है। तुम्हें सबकी सुननी है या अपने आप की? सबकी भी और अपने आप की भी। सुनो सबकी, मगर मानो अपने दिल की। तो क्या मैं सही में अच्छी दिखती हूँ? खुशी, ओ खुशी, अरे कुसुम, मेरा टिफिन रेडी हो गया क्या? हो गया बाबा, हो गया, लो। मुझे जल्दी जाना है, आज मंडे है, मंडे बहुत काम रहता है। आपको कब फुर्सत होती है? हमेशा ऑफिस ऑफिस और ऑफिस। अरे ऑफिस में जाना तो पड़ेगा ना, कामकाज करना पड़ेगा, नहीं तो बॉस निकाल देगा। खाएंगे पिएंगे कैसे हम? ऐसा सब कुछ नहीं होता जनाब, फैमिली को वक्त देना पड़ता है। बच्चन जी ने बोला है 2 बूंद जिंदगी के, आपने 2 पल बताए हैं फैमिली के लिए। क्यों पहेलियां बुझा रही हो आज? हुआ क्या है? सच सच बताओ मुझे जल्दी है, जल्दी में बताओ आप पहले 2 मिनट बैठो तो सही। अरे जल्दी करना, हाँ, नहीं तो बॉस चिल्लाएगा फिर। आप क्या करते हो? ऑफिस एंड मोबाइल, ये मोबाइल रखी है, आपको देख के भी खुशी वही कर रही है। स्कूल एंड मोबाइल, जैसा बाप वैसे बेटी हो गई है। अरे क्यों ऐसा करो? क्या हो गया मेरी खुशी को? इतनी अच्छी तो लड़की है वो। आपने देखा कहाँ है, उसमें कितने बदलाव आ रहे हैं। बदलाव? अरे कल तक तो एकदम नॉर्मल थी, कहाँ कोई बदलाव आया? आप टिफिन विफिन सब रख दो और मेरी बात सुनो। खुशी के बदलाव के बारे में, स्कूल से आती है, कमरे में चली जाती है, ना बात करेगी ना खाना खाएगी, कहीं आना जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, ना कुछ करना है। ये क्या चीज़ हो रही है उसमें? अभी कहाँ है मेरी प्रिंसेस? अभी कहाँ है वो? पिकनिक पे जाना है मैडम को, तैयार हो रही है। स्कूल की पिकनिक है, देखना तो अभी। अच्छी बात है ना, अभी आप बोल रहे थे किसी से घुल मिल नहीं रही है, पिकनिक जा रही है तो अच्छी बात है। अरे आप देखो तो सही, समझो। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे, गुड मॉर्निंग बेटा, पापा। आइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरा छोटा हाथी? क्या पापा आप भी हमेशा छोटा हाथी करते हो? क्या मनोज आप भी? अरे सॉरी सॉरी बेटा, मैं तो प्यार से बुला रहा हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता है। नहीं खुशी, ऐसे नहीं है, कितनी अच्छी दिख रही है वो। अरे मस्त लग रही है। सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं हमेशा। खुशी, सबको नजरअंदाज करो। मैं अच्छी दिख रही हूँ? कैसे दिख रही हूँ मम्मा? बहुत अच्छी लग रही है। खुशी, थोड़ी लिपस्टिक ज्यादा हो गई बेटा। मम्मा मुझे अच्छा दिखना है, सबसे सुंदर दिखना है। अरे आप अच्छी हो, लेकिन मेकअप तो देखो, ये बाल क्या किया है? थोड़ा पापा ये ना, मम्मी मैं अच्छी दिखूं ना, उसको अच्छा ही नहीं लगता है, हमेशा का ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है बेटा, हर मम्मी अपने बच्चे को प्यार करती है, उसे तो अच्छा ही लगेगा ना तुम अच्छी दिखोगी तो। नहीं चलो मैं जाती हूँ, मैं निकलती हूँ, अभी मुझे पिकनिक जाने में देर हो रही है। खुशी अपना डिब्बा ले जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, फिर मैं खाना खा के मोटी हो जाती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी।
अच्छा आप ऑफिस से जल्दी आ गए। जल्दी आ गए। खुशी सुबह से पिकनिक से टेंशन है। आने वाली है, देखते हैं कैसे हो रही है उसकी पिकनिक। देखिए आ ही जाएगी अभी वो। आ गई देखो खुशी। पर कैसी ये क्या रही? हुआ? कैसी रही पिकनिक मेरे बेटा? तो इतनी क्या हो गुमसुम गया? क्यों है? पिकनिक में मजा नहीं आया? नहीं, मैं ना अभी कभी पिकनिक में नहीं जाने वाली हूँ और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जाने वाली नहीं हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया फ्रेंड्स के साथ? अरे खुशी, पापा कुछ पूछ रहे हैं, बताओगे नहीं? क्या हुआ है? क्या हुआ क्या बेटा? मम्मा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ? सब लोग क्यों मेरे पे हमेशा कमेंट करते हैं? उन्हें नजरअंदाज करो बेटा। ये सब छोड़ दो, तुम पढ़ाई में अव्वल आनी चाहिए। ये बाकी वो की तो सब वो बातें है छोड़ ना। दो। पर मम्मा मैं कैसे छोड़ दूँ? सारा दिन मैं उन सबके साथ रहती हूँ। अगर स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं प्रिंसिपल से आके मिलता नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप प्रिंसिपल के पास तो आना ही नहीं। एक तो मेरे ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मेरे फ्रेंड्स भी कम हो गए हैं। आधे लोग मेरे से बोलते ही नहीं है और ऊपर से आप प्रिंसिपल के पास आओगे। पर इससे क्या ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी अगर मैं प्रिंसिपल से मिल लेता हूँ तो? नहीं नहीं, सब लोग मेरे पे और ज्यादा कमेंट करेंगे, मेरे फ्रेंड्स कम हो जाएंगे। पापा की बात सुन तो लो खुशी। और नहीं, क्या नहीं। दिक्कत है तुम्हें? मैं ना जाती हूँ मेरे रूम में और मैं आज रात का खाना भी नहीं खाने वाली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करते बेटा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाली हूँ। अरे अरे। ऐसा नहीं करते। देखो, आपने देखा? हाँ, अब मुझे समझ में आया कि तुम सही बोल रही हो। मैं बहुत बिजी था पर उसके बर्तन में सही में चेंज लग रहा है। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए, कोई अच्छा डॉक्टर देखिए, यानी खुशी को उसका फायदा होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी जान पहचान में है, डॉक्टर दारू वाला है, वो बहुत अच्छे हैं। रीना रीना कम कर देते। So over to the third scene, they are visiting Dr. Daruwala. अरे डॉक्टर दारू वाला अरे नाम पे मत जाओ, पूरे गुजरात का नंबर 1 डॉक्टर है ये। लग तो नहीं रहा है, ये तो पूरा खाली पड़ा है। तो कोई अपॉइंटमेंट से देख ले। अरे पापा, ये मेरा प्रॉब्लम तो समझेंगे ना? अरे बहुत अच्छे डॉक्टर है बेटा, ये शांति से सुनते भी है और सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं। अरे लगता मनोज तो भाई नहीं है। आइए 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 कुसुम मैडम बैठिए बैठिए। अरे खुशी દીકરા તું બી આવીશ? બેઠ બેઠ ની દીકરા, કેટલી સોચી લાગસ। बैठिए 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 मैडम। सब छोड़िए, ये बताइए आपका नाम अजीब नहीं है? अजीब तो है। क्या था मैडम, पहले हमारा धंधा दारू बेचने का था, तो दारू वाला सरनेम पड़ गया। फिर हमने दवाई देना चालू किया, तो बीच में हमने सरनेम बदल के दवा दारू वाला कर दिया, तो लोग हंसने लगे, ये कैसा सरनेम है। फिर हमने दवाई पेशेंट को दे दी, दारू हमने रख लिया, तो फिर से हम दारू वाला बन गए। अरे भाई तुम ये सब बातें छोड़ो, अपनी खुशी की बात करो। अरे हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बताइए बताइए। इतनी अच्छी लड़की है लेकिन अभी इतने प्रॉब्लम है, आपको क्या बताऊं। ना बोलती है, ना खाती है, ना कहीं आती है, ना जाती है, एकदम गुमसुम बैठी रहती है। बैडमिंटन की नेशनल प्लेयर है लेकिन अभी रैकेट को हाथ नहीं लगाती। अरे अभी आपको क्या बताना अरे 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 ठोभनी बाबा, आप तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस की माफिक धनाधन 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 चालू हो गए। प्रॉब्लम भी तो उतने है ना डॉक्टर शांति साहब। से बैठिए, बहुत टेंशन में। आपको शांति से सुनने के लिए मैंने ये टाइम सिर्फ आपको दिया है। शांति से बैठिए। आप एक काम कीजिए मनोज भाई, कुसुम बहन, आप थोड़ी देर बाद बैठिए, मैं तब तक खुशी दीकरा से बात कर लेता हूँ, बाद में आपको शांति से समझाता हूँ। खुशी दीकरा, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? ठीक है। पर अच्छी तरह से प्रॉब्लम। मनोज भाई, कुसुम बहन, बाहर बैठिए, शांति से बैठिए। हाँ प्रॉब्लम हो जाए हाँ डॉक्टर साहब। बैठिए बैठिए। देख बहुत ले। आशा के साथ खुशी आपके दीकरा पास बैठो। आए। खुशी दीकरा, आप क्या सोचते हो? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे पता ही नहीं है मेरा क्या प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम है भी नहीं है, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ ना अभी। आप शांति से बताओ, आपके और मेरे मुझे बारे में लगता जो है बात। मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स मेरे को लाइक करते हैं, बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, जब आप आए तब आपका हाइट और वेट लिया था,
आप ये देखिए, ये आपका ग्रोथ चार्ट है। आपकी उम्र के हिसाब से और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन एकदम सही है। आप मोटे नहीं हो, चिंता मत करो। पर मुझे मेरे फ्रेंड्स एक तो लाइक नहीं करते हैं, ना मुझे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स मेरे हैं। मेरी फ्रेंड काव्या के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे उसमें, और मेरे सब लोग, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो हमेशा मेरे पे कुछ कुछ कमेंट करते रहते हैं। तो ये बात है। देखो, इंस्टा और एफबी की बातों को आप सीरियसली मत लो। वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है। लोगों की कमेंट आपकी खूबसूरती तय नहीं करती। आपकी खूबसूरती आपके आत्मविश्वास और मेहनत में है। और फेसबुक और इंस्टा पे जो पिक्चर्स होते हैं वो ज्यादातर एडिटिंग वाले होते हैं। और आजकल तो देखो नहीं बाबा, वो एआई ने गूगल जेमिनी કાંઈ નું કાંઈ કરે છે। घोड़े को गधान, गधे को घोड़ा बनाई दे છે, कौवे को बबूला और बगुले को कौवा बनाई दे છે। तो इस पे ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का। नहीं, पर मुझे अच्छा दिखना है और मेरे है ना, कोई भी कुछ भी करके मुझे वेट कम करना है। मैं इंटरमिटेंट डाइट फॉलो करूं। एक मेरी फ्रेंड है ना, वो जीएम डाइट करती है, तो मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा? डाइट तो करना ही है मुझे। आप लोग डाइट के बारे में तभी सोचते हो जब आपको वजन कम करना होता है। आपने कभी सोचा है खाना हमें ऊर्जा प्रदान करता है? खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जंक फूड, प्रोसेस फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये कहां का बात हुआ रे बाबा कि पूरा दिन घास फूस खाते रहने का, घोड़े और गधे की तरह काम करते रहने का। हम इंसान है बाबा, जानवर थोड़े है, तो घास फूस खाएंगे। न्यूट्रिशियस खाना खाओ, अच्छे से अपनी हेल्थ की देखभाल करो। और आजकल आप बैडमिंटन खेलते हो? नहीं नहीं, अभी तो मैंने बंद ही कर दिया है। कोर्ट में जाना ही बंद कर दिया है। इतना लोग चिढ़ाते हैं ना, इतनी मगजमारी करते हैं ना, अभी मैं जाती ही नहीं हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं शायद जिम ज्वाइन करूंगी। देखो बेटा, खेल से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी खुशी बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। खेल हमें हंसते हंसते हारने की और जीतने का जुनून बढ़ाने की ट्रेनिंग देता है। खेल से कंसंट्रेशन बढ़ता है, उससे पढ़ाई में भी फायदा होता है। और सबसे ज्यादा बात, अच्छी बात, आप अपने आप को एनर्जेटिक और क्रिएटिव महसूस करते हो। तो दिन में 2 घंटा आउटडोर खेल खेलना ही चाहिए आपको। पर मेरे सब फ्रेंड मुझे चिढ़ाते हैं, छोटा हाथी छोटा हाथी। ये बात है। जब कोई हमारे पे कमेंट करे तो हमें बुरा तो लगता है। मुझे भी जब कोई डॉक्टर दारू दारू करता है तो मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन लोगों की बातों को सीरियसली नहीं लेना है। वो अपनी कमियां छुपाने के लिए हम पे कमेंट्स करते। ऊपर वाले ने हम सबको बॉडी दी है और वो यूनिक है, वो हमारी आइडेंटिटी है। अब उस पे अगर कोई कमेंट करता है तो वो उसकी गलती है। तो फिर आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सही में मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, अच्छे से नींद लेनी है, अच्छा खुराक लेना है, और सबसे अहम बात, अपने क्वालिटीज पे फोकस करना है, अपने आत्मविश्वास पे। आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हो, आप कितना हंसमुख हो, उन सब बातों पे ध्यान दो। और लोगों की कमेंट को सीरियसली मत लो। अगर कोई कमेंट करता है तो शांत रहकर मुस्कुरा दिया करो। और फिर भी अगर कोई तंग करता है तो उसे मक्कम स्वर में बता दो कि मुझे ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। अपने दोस्तों को समझदारी से चूज करो। जो आप जैसे हो वैसे आपको दोस्ती करे, वो सच्चे दोस्त होते हैं। जो आपको बदल कर दोस्ती करे वो दोस्ती नहीं, सौदा करे। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली है ना, मैं मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, ग्रुप में से निकाल देंगे, उसकी वजह से ही बहुत टेंशन में रहती थी। पर आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। थैंक यू। पर है ना, मेरे पापा को समझा देना अच्छे से। आइए मनोज भाई, कुसुम मैडम आइए बैठिए। सर क्या बताया, मेरी खुशी ने क्या बताया आपको? अरे बैठिए, शांति से बैठिए। आपने मनोज भाई बहुत अच्छा किया जो खुशी दिकरा को इतने जल्दी समझ लिया। आपने उसको जल्दी समझा
और जल्दी मेरे पास लेके आए, तो हमें काउंसलिंग का अच्छे से टाइम मिला। पर उसमें भी हमारी वाइफ का ही रोल है। मैं तो पूरा दिन काम करने में बिजी था, मुझे तो ये सब चेंजेस के पता ही नहीं थे, पर उसने मुझे बताया, तब मुझे लगा कि हमें अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, उसको मेरे पास लेके आए, हम उसको काउंसलिंग कर पाए और अच्छे से समझ पाए। दवाइयाँ भी दी है। लेकिन ये क्या मनोज भाई, आप उसको छोटा हाथी बुलाते हो। मैं तो प्यार से बुलाता हूँ। अरे लेकिन वो डिग्री है बाबा, कोई टेम्पा थोड़े है तो आप छोटा हाथी करते हो। आप सोचो, आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन उसका असर बड़ा होता है। अगर वो कल को अपने आप को हाथी समझने लगी तब, और फिर बच्ची को लगने लगेगा कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, और अगर किसी दोस्त ने ऐसा कमेंट कर दिया तो उसको बुरा लग सकता है। इस उम्र में ये बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर उसको कोई नाम देना है तो अच्छा सा नाम दो, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े। जैसे मेरी शेरनी, गोलगप्पा क्वीन, चॉकलेट मशीन, ऐसा कुछ बुलाओ ना बाबा। आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, उसमें आत्मविश्वास बहुत है, वो पढ़ाई में भी अच्छी है, बैडमिंटन अच्छा खेलती है, चीयरफुल है। उसकी क्वालिटीज उसको दिखाओ, और उसके फ्रेंड सर्कल में भी ये बताओ, और उसके टीचर को भी ये पॉजिटिव बातें बताओ। उससे हो जाएगा ना? थैंक, हाँ, उसी अच्छी पक्का को हो जाएगा। पक्का हो जाएगा। फिर से कब आना मिलने सर? फॉलो अप में कब आना? 1 महीने बाद आप दिखा जाना। खुशी दिख रहा है आपसे। जो ले लिया। So that was our role play. From the role play, you could identify common signs of body image issues. So you could identify different body image issues such as excessive focus on appearance, comparing with peers and celebrities, negative self-talk, emotional distress, you may see mood swings, unhealthy dietary practices, social avoidance. These are all also the red flag signs. The parents should be aware about all these things. When body image issues become severe, that is, teen has preoccupation with the perceived defect or a flaw in her physical appearance, when in fact they appear normal, and it leads to distressing repetitive actions, and at times that leads to suicidal ideation and behavior, and they may also show interest in cosmetic procedures. It becomes a body dysmorphic disorder. So role of pediatricians is very important. We had a very nice pediatrician. So first and foremost, reassure them you are not alone. Lots of boys and girls struggle with body image issues. Stress that you are not defined by the way you look, but having a healthy body more important than your shape. Encourage self-awareness and critical thinking skills, especially about the social media. Make them understand, question, evaluate the use of Photoshop, photo manipulation, editing, and filters. In the role play, importance of healthy eating and excessive exercise was emphasized very nicely. Teach them to talk back to the negative voice in their head and turn to positive body love affirmations like, I am thankful to my body for what it does for me. I am healthy. My body is my home and not an art gallery to look at. Mirror meditation is very important, which they can do 5 to 10 minutes per day. Mirror meditation or gazing is not only staring at your physical body, but also looking down into your inner self. It helps to increase self-compassion, it decreases stress, anxiety and depression. Parental guidance is also very important. Even good-natured teasing about bodily changes can be detrimental to adolescents' self-image. That was well highlighted in our role play. Stress upon, just 1 minute. Stress upon keeping communications line open between parent and teen.
Never ever dismiss their feelings about their body and always give positive inputs about their body. So, a mirror reflects what we see and believe. Smile in the mirror. Nobody needs to prove to anybody what they are worthy of. Just the person that they look at in the mirror needs to be answered. So, happy mirroring, everyone. Thank you. Thank you.